Hare Krishna. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 37, Prayers by Queen Kunti and Parikshit saved. अप्यद्यन् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि सुहृदो नुजीवनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. Now, when all kings are at enmity with us. Purport. The Pandavas are most fortunate because with all good luck, they were entirely dependent on the mercy of the Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. The material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. The false attempt to become independent of the stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge. The whole material world is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature, beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven down to the present age. They are trying to overcome the laws of nature. They are trying now to approach distant planetary systems by electronic mechanical power. But the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord. The Pandavas were the ideal executors of this standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Sri Krishna, but they were not idle parasites of the Lord. They were all highly qualified, both by personal character and by physical activities. Still, they always looked for the mercy of the Lord because they knew that every living being is dependent by constitutional position. The perfection of life is therefore to become dependent on the will of the Lord instead of becoming falsely independent in the material world. Those who try to become falsely independent of the Lord are called anath or without any guardian, whereas those who are completely dependent on the will of the Lord are called sanath or those having someone to protect them. Therefore, we must try to be sanath so that we can always be protected from the unfavorable condition of material existence. By the deluding power of the external material nature, we forget that the material condition of life is the most undesirable perplexity. The Bhagavad Gita therefore directs us 7.19 that after many many births one fortunate person becomes aware of the fact that Vasudev is all in all and that the best way of leading one's life is to surrender unto him completely. That is the sign of Mahatma. All the members of the Pandava family were Mahatmas in household life. Maharaj Yudhishthir was the head of these Mahatmas and Queen Kunti Devi was the mother. The lesson of the Bhagavad Gita and all the Puranas, specifically the Bhagavad Purana, are therefore inevitably connected with the history of the Pandav Mahatmas. For them, separation from the Lord was just like the separation of a fish from water. Srimati Kunti Devi therefore felt such separation like a thunderbolt, and the whole prayer of the queen is to try to persuade the Lord to stay with them. After the battle of Kurukshetra, although the inimical kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only the Pandavas who were put into the condition of enmity, but all of us are always in such a condition. And the best way of living is to become completely dependent on the will of the Lord and thereby overcome all difficulties of material existence. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शिल प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से सनाथ बन सकते हैं अनाथ जो हमने अनाथ का डेजिग्नेशन अपने ऊपर लगा रखा है उसको छोड़कर हम सनाथ बन सकते हैं क्योंकि इस संसार में चाहे कोई कितना भी कह ले कि मैं मुझे किसी के भी शरणागति की आवश्यकता नहीं है। शरणागति का मतलब यहाँ पर बहुत ही गलत माना जाता है यानी आपको किसी की दूसरे की कृपा पे जिंदगी जीनी पड़ रही है।
तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपमान है कि आपको दूसरे की कृपा पर जीवन बिताना पड़ रहा है। तो अगर ऐसा किसी से कहा जाता है तो व्यक्ति बहुत ही ग्लानि अनुभव करता है। आज अगर कोई पत्नी अपनी पत्नी से बोल दे कि मैं कमा के ला रहा हूं और तुम मेरी कृपा पे जीवन जी रही हो, तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है, जो जो पत्नी बाहर काम ना करती हो। तो इस प्रकार से सिचुएशन, एंड किसी व्यक्ति को बोल दो तुम मेरी कृपा पे जीवन जी रहे हो, अगर अगर आपका बॉस ही आपको ये बोल दे कि तुम्हें तुम्हें मेरी कृपा के कारण तुम्हारे घर पर रोटी चल रही है तुम्हारी, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो वास्तव में ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पोजीशन है, एक अपमान वाली स्थिति है। लेकिन भगवान की कृपा पर निर्भर रहना अपमान वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबको रिसोर्सेज प्रदान करने वाले हैं। एक व्यक्ति जो भगवान के रिसोर्सेज लेता है और उन रिसोर्सेज का उपयोग करता है अपने बिजनेस के लिए, और फिर भी भगवान को वो धन्यवाद नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। वास्तव में प्रत्येक, हम इस संसार में जो भी पैसा कमा रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो भी कार्य कर रही है, किस आधार पर कर रही है? क्योंकि भगवान ने कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया है जिसका वो उपयोग कर रही है, उनका उपयोग करके वो कुछ और कार्य कर रही है, दूसरे लोगों का कार्य कर रही है और वहां से पैसा कमा रही है। राइट? कुछ आप प्रोडक्ट बना रहे हो अगर, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। क्या आज तक साइंटिफिक लैब में कोई एक भी साइंटिस्ट एक घास का तिनका भी पैदा कर पाया है बिना किसी सपोर्ट के नेचर से? क्या केमिकल से लाइफ आज तक बन पाई है? वो नहीं बन पाई, बिकॉज लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। शिल प्रभुपाद की पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, कि जीवन से ही जीवन आता है, जीवन के अलावा और कहीं से आप जीवन नहीं ला सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भगवान बनने का गुरूर रखते हैं, वास्तव में वो भगवान नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा दिए गए संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, वास्तव में वो अनाथ है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा होता है, अगर उसके माता पिता नहीं है तो वो अनाथ कहलाता है। और सनाथ कौन है? जिसके माता पिता हैं। तो हमारे तो माता पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हम सनाथ हैं। और इसीलिए जब भी हमें कोई समस्या होती है, हम जा सकते हैं अपने भगवान के पास और उनसे कुछ भी हेल्प भी मांग सकते हैं। तो वास्तव में जो पहले राजा होते थे, जैसे पांडव थे, वे क्या करते थे? वो पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहते थे, और भगवान की निर्भरता के कारण ही उनके अंदर क्षमता होती थी दूसरों की सहायता करने की, क्योंकि वह स्वयं की शक्ति पर निर्भर नहीं रख रहते थे। वो नहीं, ये नहीं सोचते थे मैं अपनी शक्ति से बड़ा कार्य कर रहा हूँ, वो सोचते थे कि मैं भगवान की कृपा के कारण ये कार्य कर पा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को महात्मा कहा गया है। भगवत गीता के 7.19 में 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदु बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मात्र प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति समझ पाता है कि वासुदेव ही सर्व सर्व है। सर्वम इति, इनके ऊपर कुछ नहीं है, इति है, समाप्ति है। तो जो ये समझ लेता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। कब समझता है? बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद उसको ये समझ में आता है, तो उस व्यक्ति को ही महात्मा कहा जा सकता है। किसी और के नाम के आगे महात्मा लगाने से व्यक्ति महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा वो व्यक्ति होता है जो ये समझता है कि वासुदेव सर्वमिति, सभी के प्रभु वासुदेव हैं। तो ऐसा युधिष्ठिर और पंच पांडव जो थे, ये सभी लोग मानते थे, और भगवान कृष्ण की उसी हिसाब से, उसी अनुसार वो आराधना करते थे, पूजा करते थे। तो कुंती महारानी है कि ये प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए। तो ये लास्ट इनकी प्रार्थना का श्लोक है। somebody can read। वयम नाम रूपाभ्याम जदोभि स पांडवा भवतो दर्शनम यहि ऋषिकाणाम ईवेस्तुतु। Translation: as the name fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you don't look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas and Yaduj, will end at once. Purport. Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandava is due to
Sri Krishna only. The Pandavas are undoubtedly well established in the name and fame and are guided by the great king Yudhishthira, who is morality personified, and the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Krishna, all of them are non-teach. As, as much as the sense of the body are unless without the guidance of consciousness. No one should be proud of the prestige, power, and fame without being guided by favor of the Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is the Lord Himself. If we may therefore invent by our advancement of material knowledge all sorts of the contracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions end in fascio, fasco. However strong and sound the reactionary elements may be. यस, तो कुंती देवी क्या कह रही हैं कि ये हमारे जो फेम है, जो हमें यश प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, और हम जो कार्य कर पा रहे हैं, पांडव यदु सभी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा अगर आप हमारी तरफ कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे। जिस प्रकार से, जैसे ही एक बॉडी, शरीर समाप्त हो जाता है या आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो शरीर का नाम, यश, प्रसिद्धि, तो वो सब भी समाप्त हो जाती है। तो भगवान इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें यही समझना चाहिए कि वास्तव में हम भगवान की भक्ति जब कर रहे हैं, तो हम क्या सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि मैं प्रभु भगवान पे किस प्रकार निर्भर हूँ। ये पहला चरण है सीखने का, कि मैं भगवान पे निर्भर हूँ। और भगवान की निर्भरता समाप्त अगर हो जाएगी, भगवान के ऊपर जो निर्भरता है यदि वो समाप्त हो जाएगी, तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस संसार से विदा ली, जैसे ही वो अपने धाम चले गए, तुरंत ही पांडव भी त्याग दिए सब कुछ। भागवतम में आप पढ़ेंगे, उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने कहा भगवान चले गए तो अब यहाँ इस संसार में हमारे रहने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि भगवान थे तो उनके जीवन में खुशी थी, भगवान थे तो उनके जीवन में रंग थे, उनके जीवन में बहारें थी, जैसा कहा जाता है। वास्तव में जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कहते हैं तुम हो मेरे जीवन में तो ये बहारें आई हैं, लेकिन ये बहारें वास्तव में केवल आती हैं जब आपके जीवन में भगवान होते हैं। भगवान नहीं होते हैं तो सब कुछ सूना है। ये पांडव और पांडव जैसे भक्त ही समझ सकते हैं कि भगवान नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं है। कुंती महारानी इस बात को समझ रही हैं, और सभी पांडव इस बात को समझ रहे हैं। और वो सब भागवतम के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि हमें, हमारी क्या एस्पिरेशन होनी चाहिए, हमारी क्या प्रेरणा होनी चाहिए, हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए कि मुझे आगे क्या प्राप्त करना है। हमें पांडवों और कुंती महारानी की चेतना को प्राप्त करना है। जो वो सोच रहे हैं वैसा हम भी सोच सकें कभी। हमें ज्ञान हो जाएगा किंतु हमें उसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ साथ उसका साक्षात्कार भी हो, जब हम स्वयं भगवान पर निर्भर रहना शुरू करेंगे। जब हम स्वयं और अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपनी शक्ति, अपने धन, इन सब पर अपनी निर्भरता के बारे में विचार करना कम करेंगे। हमारे मन में जैसे ही आता है कि ये समस्या आएगी, तो हम सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अगर कुछ समस्या का विचार आता है तो ये आता है, ठीक है मेरे पास पैसा है, कर लूंगा मैं मैनेज, या मेरे पास बहुत दम है, मैनेज कर लूंगा। ये चीज सबसे पहले हमारे मन में आती है। तो जैसे जैसे आप निर्भरता बढ़ाओगे भगवान के प्रति, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से स्वयं के लिए स्वयं से हेट करने लगो अपनी शक्ति से, या आर्टिफिशियली करो। वास्तव में आप कैसे सोचोगे? आप सोचोगे कि मेरे पास भगवान की कृपा है, और इससे, इस जो भी शक्ति मुझे दी है वो भगवान ने दी है, तो मैं भगवान की कृपा से अपनी शक्ति का उपयोग कर लूंगा। उससे हो जाएगा अगर भगवान की कृपा रही तो। कृष्णा विलिंग दिस थिंग विल हैपन। कृष्णा विलिंग दिस, somebody asks me, प्रभु जी तो आज शाम को आप अवेलेबल रहेंगे?
या आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, कृष्णा विलिंग, आई विल बी अवेलेबल. सो इफ कृष्णा विल्स, देन वी विल बी अवेलेबल. व्हेन कृष्णा सेज नो, यू विल नॉट बी अवेलेबल, आई विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड वी हैव टू रियलाइज इट. It's all by Krishna's will, and especially for the devotees, because they are constantly chanting Hare Krishna, they are constantly praying to Krishna. Please take the charge of my life. When you are chanting Hare Krishna, what are you doing? You are doing this prayer. You are reciting, please take the charge of my life. Please engage me in your service. Make me your servant. Make me your puppet. Make me your puppet. Whatever you want me to do, let me do. Let me understand that message which you want to give me. Let me understand that you want me to do this particular work. Let me understand that you want me to spread the holy name. You want me to give Bhagavad Gita to everyone. This is the month of Bhagavad Gita now. तो हम इसीलिए भगवत गीता सब दुनिया में बांटना चाह रहे हैं कि आप लीजिए, ये महीना है भगवत गीता के अवतरण का, तो आप लीजिए, क्योंकि इसमें ही भगवान का संदेश है. उसी के माध्यम से हम सभी यहाँ आए हैं आज. भागवतम पढ़ रहे हैं. तो वो कहाँ से आए हैं? भगवत गीता से शुरुआत करके आए हैं. तो भगवत गीता प्रारंभ है. भगवत गीता इज ग्रेजुएशन, देन भागवतम इज पीएचडी, एंड देन चैतन्य चरितामृत इज पोस्ट डॉक. तो हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं एक एक कदम. तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे रियलाइजेशन भी बढ़ेंगे. सो वी हैव टू, इसीलिए वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद utmost फीलिंग ऑफ total dependence on Krishna. Total dependence on Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शिल प्रभुपाद की जय.